Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be covering your experiment number 13 for your Digital Logic Design Lab, and its title is To Design a Synchronous Decade Counter. Now in this there are two keywords that you need to note down here. First is a synchronous and other is a decade counter. Now as you can see that this is going to be a very similar lab that you have already performed in the previous week. So I hope that you will be able to cover it on your own. I will just be giving you some key things that you need to note down before you try to implement this lab. Now let's start what we are going to require in this. Now the relevant ICs that you will be requiring are of course the JK flip-flop, because you are going to implement this counter using the JK flip-flops. So this is going to be pretty much easier for you since you have already seen the working of a JK flip-flop. But however, this time I will be limiting you to utilize this particular IC, which is 74107. This IC is named a dual JK flip-flop IC. So you will be requiring to utilize this particular IC in this experiment, and I will also try to explain that how you will be utilize this IC. Now, what is a decade counter? A decade counter is the one that actually counts in decimal digits instead of binary, and it counts from digit 0 to 9, and then it resets to 0. And after that what happens that when the count increments up till it reaches to the value 1001, and when it tries to increment to 1010, which is a decimal value for the decimal digit 10, then both of the inputs of the NAND gates goes high. So this means that the output or the result is going to go low and the counter will reset to 0. So let's see that how you are going to utilize this thing. Now here I'm going to present some key tips that you will be requiring to implement this experiment. The first thing is that you have a counter that counts from 0 to 9, right? And you need to go through the 5 steps that I already told you in the previous lab. The first step is that you need to decide upon the number of bits, and also you need to decide the number of flip-flops and the type of flip-flops, right? तो टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी दैट आपने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है, राइट? तो आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ़ बिट्स कितनी यूज़ होंगी इस काउंटर के लिए एंड फ्लिप फ्लॉप्स कितने यूज़ होंगे, राइट? एंड आफ्टर दैट सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप विल बी दैट यू नीड टू कीप द एक्साइटेशन टेबल ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप, यानी जे के फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक्साइटेशन टेबल आपको हैंडी रखना है अपने पास, तो दैट आप उसको देख के एक्साइटेशन टेबल अपना जनरेट कर सकें. आफ्टर दैट आपको क्या करना है? आपने स्टेट डायग्राम डिज़ाइन करनी है, एंड आफ्टर दैट नंबर 4 पर आपने राइट स्टेट डायग्राम के साथ आप स्टेट टेबल भी डिज़ाइन कर लेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ दीज विल बी डिलीवरिंग द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड नंबर 4 आपने बूलियन एक्सप्रेशंस डिराइव करनी है फ्रॉम दैट स्टेट टेबल. बूलियन एक्सप्रेशंस आपने डिराइव कर ली, और उसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट स्टेप में आपने जो सर्किट डायग्राम है वो आपने डिज़ाइन करनी है. ठीक हो गया? तो आपके बेसिक स्टेप्स एक काउंटर को डिज़ाइन करने के दैट विल बी
remain the same. But however this time जो change आ रहा है वो ये आ रहा है that first thing is that एक चीज़ का मैं आपको hint दे देती हूँ that you have 0 to 9 digits going on from 0 to 9 and you already know that 9 को represent करने के लिए हमें minimum 4 bits required है, that is 1 0 0 1. तो इसका मतलब कि मिनिमम भी आपका ये 4 बिट काउंटर होगा एंड इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग अ 4 बिट काउंटर सो दैट मीन्स दैट आपकी डिजिट्स जो है वो 0 से लेकर अप टिल 1111 तक जाएंगी विच इज़ इक्विवेलेंट टू 15. दिस इज़ इक्वल टू 0. तो दिस मीन्स दैट आपको समहाउ इसको ट्रंकेट करना है आफ्टर द डिजिट 9. सो दिस मीन्स दैट अगर आप 4 बिट काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं सो दिस मीन्स दैट आपको काउंटिंग 0 से 9 करने के बाद समहाउ इसको रीसेट करना पड़ेगा so that it points towards its base location, that is the 0. And I already told you before in the previous lab that आपको counter design करने के लिए next states किस तरह से decide करनी होती हैं. So this means that 9 के बाद the next state क्या होनी चाहिए, next state should be equivalent to its original state. अब ये 10 को point नहीं करेगा next state को. अगर current state is 9 the next state should not be equal to 10. अगर वो 10 के इक्वल होगी तो दैट मीन्स दैट यू आर नॉट डिज़ाइनिंग अ काउंटर फ्रॉम 0 to 9. in fact you are counting you are designing a counter that is counting from 0 to 10 or up till 15. तो इसको हम ट्रंकेटेड फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं या ट्रंकेटेड काउंटर भी बोलते हैं या ट्रंकेटेड डिज़ाइन भी हम इसको कह सकते हैं. दिस इज़ अ truncated design, right? तो फर्स्ट स्टेप आपने आई होप दैट यू कैन ईजिली गो थ्रू द डिज़ाइन ऑफ अ स्टेट डायग्राम. स्टेट डायग्राम के बाद आपने एक स्टेट टेबल तो बना लिया. स्टेट टेबल को देखते हुए आपने एक एक्साइटेशन टेबल बनाना है and that excitation table is going to be your key information that will actually provide you some basic development equation, boolean expressions or boolean equations based upon which you can actually build up your synchronous counter. Now one thing that you need to go through is the understanding of 74107 IC. अब इस IC के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दैट दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दिस इज़ ड्यूअल JK फ्लिप फ्लॉप IC. तो ड्यूअल JK फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एटलीस्ट एक IC के अंदर 2 JK फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी पड़े हुए हैं. नाउ दिस IC इज़ ईजीली अवेलेबल इन योर मल्टीसिम, सो आई एम श्योर दैट आप इसको यूज़ करते हुए कोई इतना मुश्किल नहीं पेश आएगी. बट हाउएवर देयर आर वन की फीचर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस. तो उसके अंदर आपको इस IC का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ. दिस इज़ अ 14 पिन IC जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6 7. This is VCC, this is ground, any pin number 1 or 7 and this is pin number 14. And pin number 2 3 4 5 and 6 8 9 10 11 12 and 13. pin number 14 और pin number 7 they are the dedicated pins. तो हम इसको देखते हैं कि इसको मैं अगर इन डिजिट्स को बाहर लिख लूँ बिकॉज आई नीड टू शो यू दैट इसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा. तो ये डिजिट्स मैं बाहर लिख लेती हूँ.
This is going to be 8, 9, 10, 11, 12 and 13. तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि देयर आर 2 JK फ्लिप फ्लॉप्स इन दिस. एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है और एक ऐसा है. एंड इन JK फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर दिस इज़ Q एंड दिस इज़ Q कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज़ J एंड दिस इज़ K. सिमिलरली यहाँ पर होगा Q कॉम्प्लीमेंट Q एंड दिस इज़ J एंड दिस इज़ K. यानी ये थोड़ा सा इन्वर्टेड मिरर इमेज लोकेशन पर पड़ा होगा. एंड हमारा जो J है दिस इज़ कनेक्टेड टू पिन नंबर 1 फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. ये पिन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप है. लाइक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो J है दैट इज़ कनेक्टेड टू पिन नंबर 1 एंड Q इज़ कनेक्टेड टू पिन नंबर 3 एंड Q कॉम्प्लीमेंट इज़ कनेक्टेड टू पिन नंबर 2. राइट. अगर मैं थोड़े से डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा. राइट. एंड सिमिलरली मेरे पास K जो है दैट इज़ गोइंग टू बी कनेक्टेड टू पिन नंबर 4. ये हो गया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की कनेक्शंस. अब सेकंड फ्लिप फ्लॉप की कनेक्शंस देखते हैं. सेकंड के अंदर Q complement is connected to pin number 6. Q is connected to pin number 5, sorry. And J जो है that is connected to pin number 8 and K is connected to pin number 11. ठीक हो गया. तो अब रिमेनिंग पिन्स कौन कौन सी बची हैं. ऑब्वियसली हमारे पास इसके अंदर एक क्लॉक भी होती है दोनों के अंदर. तो दिस इज़, अगर इसको मैं क्लॉक कह रही हूँ एंड इसको भी मैं क्लॉक कह रही हूँ, दिस इज़ अगेन क्लॉक, ये क्लॉक है. तो क्लॉक कहाँ कनेक्टेड होंगी. क्लॉक इज़ कनेक्टेड हियर. क्लॉक को हम जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसको हम पिन नंबर 12 के साथ कनेक्ट करेंगे एंड जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इसकी क्लॉक कनेक्टेड होगी पिन नंबर 9 के साथ. ठीक हो गया. अब जो रिमेनिंग पिन्स हैं, 2 पिन्स बची हैं, एक पिन नंबर 10 और पिन नंबर 13. तो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है इसके साथ एक और कलर चेंज कर लेते हैं. दिस वन. तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ एक और पिन कनेक्टेड है, दिस इज़ क्लियर. अभी क्लियर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ होती है. ये पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है और सेकंड के साथ भी एक पिन है क्लियर. ये क्लियर 1 है, क्लियर 2 है और ये दोनों कनेक्टेड हैं. ये कनेक्टेड है पिन नंबर 10 के साथ. सो लेट्स सी दैट क्लियर किस पर्पस के लिए यूज़ होती है. ये अगर लो है, अगर ये लो है सो दैट मीन्स दैट दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्लिप फ्लॉप. सो दिस मीन्स दैट आपको अगर इस IC को एज अ फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना है देन आपको इन दोनों पिन्स को, पिन नंबर 13 और 10, इन दोनों को आपको हाई रखना है. And if you are not intending to use this flip flop as this IC as a flip flop, तो आपको इसको लो रखना है, इसको लो रखना है. तो लो रखने से होगा ये कि दिस जो फ्लिप फ्लॉप की जो इनिशियल कंडीशन है वो क्लियर हो जाएगी, वो रीसेट हो जाएगी. सो दिस मीन्स दैट दिस IC कैन नॉट बी यूटिलाइज एज अ फ्लिप फ्लॉप. सो ये एक बेसिक कॉमन पेन है जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग काउंटर, या आपने अगर किसी भी और पर्पस के लिए भी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना है. तो मैंने यहाँ पर एक जो मल्टी सिम के अंदर आपके पास जो ये IC होगी वो फुल इस IC की फॉर्म में नहीं होगी, वो आपको A और B के फॉर्म में आपको दोनों फ्लिप फ्लॉप्स अलग अलग शो करेगा. जैसे मैंने यहाँ पर एक 2 बिट काउंटर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है.
तो इसके अंदर मैंने 74107 IC यूज़ की है एंड आई हैव connected the clear pin number 13 and pin number 10 both to VCC high रखा है क्योंकि because I'm going to utilize both of these ICs yeah, both of these JK flip-flops as the function of a flip-flop. तो इसके अंदर मैंने वही प्रीवियस सर्किट जो है वो कनेक्ट किया है जो मैंने प्रीवियस लैब के अंदर किया था एंड आई डिडंट मेक एनी मच डिफरेंसेस एक्सेप्ट पिन नंबर 13 एंड 10. तो इसके अंदर मैं देख रही हूँ कि जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी मुझे पिन्स अलग से शो कर रहा है, पिन नंबर 1, 3, 12, 4 एंड 13 एंड जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी अलग से शो कर रहा है 8, 9, 11 और 10. नाउ अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दैट आप 4 बिट फ्लिप फ्लॉप 4 बिट काउंटर डिज़ाइन करेंगे, 5 बिट काउंटर डिज़ाइन करेंगे या 6 बिट करेंगे, जितने भी बिट्स का काउंटर डिज़ाइन करेंगे दैट इज़ अप टू योर डिज़ाइन. तो आपने उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स यूटिलाइज़ करने हैं, मिनिमम आपको 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे. ठीक हो गया. तो 4 बिट्स के लिए आपको एटलीस्ट भी 4 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड हैं. सो दिस मीन्स दैट आपको 74107 की एटलीस्ट भी 2 ICs रिक्वायर्ड है. एक IC के अंदर 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं. सो दिस मीन्स दैट आपकी 2 ICs के अंदर 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे. एंड another thing is that जो मैंने आपको स्टार्ट में कीवर्ड बताया था, that keyword is what? This is synchronous counter. Synchronous counter का मतलब क्या है? that clock जो है that will be provided simultaneously. सो मेक श्योर दैट आप जब भी काउंटर डिज़ाइन करें तो आप ये देख लें कि ये एसिंक्रोनस काउंटर है या ये सिंक्रोनस काउंटर है. नाउ इन दिस केस यू आर डिज़ाइनिंग अ सिंक्रोनस काउंटर. सो दिस मीन्स दैट आप जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं सबको क्लॉक साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट से कनेक्ट करके सप्लाई करेंगे. सो आई होप दैट अभी तक की जितनी भी टास्क हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं. टास्क मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ. That you are going to design a synchronous decade counter. Right. somehow it is not typing here decade counter, right? तो आपके पास आपने एक सिंक्रोनस डेकेड काउंटर करना है, उसका आपने स्टेट डायग्राम डिज़ाइन करनी है. स्टेट डायग्राम के लिए आप कंट्रोल सिग्नल रखें या ना रखें, इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है. अगर आप कंट्रोल सिग्नल जनरेट नहीं भी करते तो भी इट्स ओके. अब आपकी टास्क्स क्या है? टास्क्स ये हैं दैट आपने ये काउंटर डिज़ाइन करना है, उसकी पाँचों के पाँचों स्टेप्स भी प्रोवाइड करने हैं. आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आपका स्टेट डायग्राम कैसी है और उसके बाद आपने स्टेट टेबल किस तरह से जनरेट किया है एंड आफ्टर दैट आपने एक्साइटेशन टेबल किस तरह से बनाया है और एक्साइटेशन टेबल से आपने बुलियन एक्सप्रेशंस किस तरह से डिराइव किए एंड आफ्टर दैट आपने सर्किट डायग्राम को ऑन पेपर या ऑन वर्ड बनाना भी है. Even if you draw it with your hands on any table on any paper, तो आप उसका स्नैपशॉट भी ऐड कर सकते हैं अपनी जो लैब रिपोर्ट है. एंड आफ्टर दैट आपने उसको मल्टी सिम पर इम्प्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने इसको यूजिंग विच IC 74107 आपने IC यूज़ करनी है. एंड आफ्टर दैट आपने इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने उसकी स्नैपशॉट्स या स्क्रीनशॉट्स जो है आपने लैब रिपोर्ट के अंदर ऐड करके यू विल सबमिट इट टू योर टीचर. नाउ फॉर दिस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आई हैव प्रोवाइडेड सम एम्पल डिटेल्स इन द लेक्चर स्लाइड्स. दिस इज़ ओनली फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स सो दैट आप लोगों के लिए ये लैब इम्प्लीमेंट करना ईजी हो जाए.
but however this for the EE students this is going to be utilized as an open-ended lab. So I am sure that आप इसको implement करने के लिए खुद से कोशिश करेंगे. And if you have any relevant questions, then you can ask to your teacher. So I'm going to end this session now. Allah Hafiz.